Yo, welcome to Physics with Vinay. Hi, I'm Vinay and I'm back. This is the lecture on capacitors. तो सबसे पहले let us look at the definition of capacitance. मेरे पास कोई दो conductors है. So we can define capacitor as a system of two conductors which stores charge and energy. अगर इसको मैंने positive charge दे दिया, इसको negative charge दे दिया, तो there will be obviously some electric field lines, correct? Going from the positive conductor to the negative conductor. And these electric field lines will store energy. अपने को पता है half epsilon t square is the energy density in an electric field. We know that. And therefore this system of conductors which we call as capacitor or condenser भी बोलते हैं इसको. So that will store energy. ठीक है. इसको create कैसे करते हैं? इस potential इस charge system को कैसे create करते हैं? By creating a potential difference. And for that we use a battery or a cell. So a cell is the device that creates a potential difference and it has a higher potential terminal and a lower potential terminal. और जो potential difference है across the terminals that is called as the EMF. EMF का proper जो definition है EMF of a battery is the work done by the battery on a unit charge. So let's say अगर charge Q flow कर रहा है, let's say इसका potential V1 है, इसका potential V2 है. So battery is a device with two terminals. तो इसका potential, इस terminal का potential V2 है, इसका V1 है. तो charge का कितना potential energy change होगा? तो work done by the battery will change the potential energy of the charge. कितना करेगा? Q times V2 minus V1. That is the increase in potential energy. ठीक है? So what is EMF? EMF is the work done by the battery on unit charge. So unit charge पे Q से मैं divide कर दूँ. So this is nothing but the EMF. So EMF is nothing but the potential difference across the terminals of the battery. ठीक है? बैटरी के अंदर exactly क्या होता है कि we interpret this phenomenon as कि बैटरी के अंदर एक chemical force है that is pushing the charge against the electric field. See, electric field inside the battery will be from higher terminal to lower terminal. We know electric field lines go from higher potential to lower potential. So there is some chemical force which is exactly cancelling out the electric force, or you can say it's slightly more than the electric force, and it is pushing the charge against the electric force and increasing its potential energy. So that is the battery's job. It increases the potential energy of any charge that goes through it. अगर charge opposite sense में जाएगा, वो भी हो सकता है, तो उसमें potential energy decrease हो जाएगा charge का, ठीक है? Alright, तो यहाँ पे we have to realize and understand and remember that the battery does not absorb any charge, it does not release any charge, it only changes the potential energy of any charge that is going through it. जितना charge उसके अंदर जाएगा उतना ही बाहर निकलेगा, ठीक है? Okay, so what we do is how to create this system is दो conductors ले लो and you connect it by a battery. So these are metal wires. Now we know from electrostatics कि metals are equipotential, वहाँ पे electric field zero है conductors में. तो therefore ये जो terminal का potential है V2 वही ये पूरा metal wire से connected है, तो वही इसका भी हो जाएगा. They are all connected, ठीक है? और ये जो terminal का voltage है V1 is connected by metal wire connected to this right conductor, तो उसका भी कितना हो जाएगा? Potential V1. And what the battery will do is, battery will take some charge from the right conductor, from the lower terminal conductor, and deposit it here. तो यहाँ पर बचेगा minus Q. Initially अगर neutral माने तो Q यहाँ से निकल के बैटरी के थ्रू जाके यहाँ पर deposit हो जाएगा. And this will create the system that we were talking about. ठीक है? So the charges कितना charge जाएगा such that the potential difference is V2 minus V1. Alright. So here we define capacitance. We define capacitance as the charge stored on the positive conductor divided by the potential difference. So in this case my potential difference would be V2 minus V1. Alright. तो ये मेरा capacitance का definition है. ठीक, देख लो. So the most commonly encountered capacitor is the parallel plate capacitor. तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में you have two plates which are kept close to each other. तो
these plates can be treated as very large compared to the distance between them. So we can use the field of an infinite sheet. जो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था, वो सब फील्ड्स अपन यहाँ पे यूज कर सकते हैं. So इसका कैपेसिटेंस comes out to be epsilon naught A by D, where A is the area, the side area, and D is the distance between the plates. ठीक है, तो ये अपन याद रखेंगे. अच्छा, now अगर मेरे पास चार्ज Q एंड माइनस Q है, अगर दोनों न्यूट्रल है प्लेट्स, लेट्स अज्यूम दे न्यूट्रल, तो वी नो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है. टोटल चार्ज बाय 2 कम्स ऑन द आउटर सरफेस हियर, पर टोटल न्यूट्रल है तो यहाँ पे 0 0 होगा ना. तो जो भी चार्ज अपन डालेंगे यहाँ पे Q एंड माइनस Q, वो सब इनर सरफेस पे रिसाइड करेंगे. सो देयर विल बी एन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड देयरफॉर देयर विल बी एन एनर्जी स्टोर्ड. कितना हो जाएगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट T स्क्वायर्ड इनटू द वॉल्यूम. दिस एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, डेंसिटी, area into this distance d. So if you calculate this, you write electric field in terms of charge. We know sigma by 2 epsilon naught कैसे लिखते हैं. तो यहाँ पे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, इसके कारण सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, इसके कारण सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट. करेक्ट, दोनों के कारण सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा इज क्यू बाय ए. तो ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा. सब्स्टिट्यूट हियर, यू विल गेट इट एज Q square by 2C. वो अपने को याद रखना है. I can also use the fact that अगर if the potential difference between the plates, suppose उसको V बोलता हूँ, तो कैपेसिटेंस क्या था मेरा, Q by V है ना, that was the definition. So using this, if you substitute Q as CV, so you can also write this as half CV square. Okay, so सब कुछ अपने को याद रखना है. These are the two forms of the energy stored, the electric energy stored inside the capacitor. देख लो. So let's look at the type of question that can come. मेरे पास एक बैटरी है जिसका EMF 2 volts है, connected to a capacitor जिसका कैपेसिटेंस लेट्स से 3 farad है. कैपेसिटेंस का SI यूनिट इज फैराड्स. ठीक है, and this is 3 volt. तो दो बैटरीज है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू द 2 वोल्ट बैटरी एंड बोला हुआ है कि फाइंड द हीट प्रोड्यूस्ड व्हेन स्विच इज फ्लिप्ड फ्रॉम पोजीशन 1 to 2. 1 से 2 अगर मैंने फ्लिप किया तो कितना हीट प्रोड्यूस होगा. सो ऐसे क्वेश्चंस में वी विल यूज एनर्जी कंजर्वेशन कि वर्क डन बाय द बैटरी. क्या क्या वर्क करेगा, यहाँ पे बैटरी वर्क कर सकता है. Work done by the battery is equal to some work by the battery may be going in the change in the potential energy stored inside the capacitor, and the rest will be lost as heat. This is the energy conservation equation that we will use. ठीक है. Okay, so पहले तो अपने को फिगर आउट करना पड़ेगा कितना चार्ज है कैपेसिटर पे और इनिशियली कितना है, फाइनली कितना है. तो इनिशियली चार्ज Q इक्वल टू CV यूज करता हूँ. V इज द पोटेंशियल डिफरेंस विच विल बी इक्वल टू 2 volts इनिशियली. तो इनिशियली कितना चार्ज है, 3 into 6. नाउ दिस हायर टर्मिनल इज कनेक्टेड टू द राइट प्लेट. तो यहाँ पे 6 कूलम और यहाँ पे -6 कूलम. करेक्ट, ऐसा हो जाएगा. जो हायर टर्मिनल, जो हायर पोटेंशियल है दैट इज कनेक्टेड टू द राइट प्लेट, तो वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा. सो इनिशियल एनर्जी कितना है, Q स्क्वायर बाय 2C या हाफ CV स्क्वायर यूज कर लो. तो हाफ CV स्क्वायर यूज करूँगा तो हाफ C इंटू V स्क्वायर. ठीक है, जूल्स में. ऑलराइट, नाउ फाइनली दिस इज इनिशियली, फाइनली आफ्टर द स्विच इज फ्लिप्ड, तो यहां पे स्विच कर दिया. अब इसके अक्रॉस 3 वोल्ट है. करेक्ट. नाउ 2 वोल्ट बैटरी इज गॉटन डिस्कनेक्टेड. 2 वोल्ट डिस्कनेक्ट हो गया, अभी 3 वोल्ट. तो अभी कितना चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे 9 कूलम आ जाएगा, यहाँ पे -9 कूलम CV. करेक्ट. So final potential energy is half into 3 into half CV square, half into 3 into 3 square. Correct. So मुझे डेल्टा यू तो पता चल जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल करके. What about work done by the battery? So EMF का डेफिनेशन क्या था, वर्क डन बाय द बैटरी पर यूनिट चार्ज. So work done by the battery is Q times C. This Q is the charge that flows through the battery.
ठीक है, तो वो थोड़ा केयरफुली देखना है। ये कैसे कैलकुलेट करेंगे चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द बैटरी? वेरी सिंपल, कोई भी एक टर्मिनल चेक करो एंड सी व्हाट इट इज कनेक्टेड टू। सो सी यहाँ पे चार्ज इज ओनली गोइंग टू फ्लो थ्रू द 3 वोल्ट बैटरी, बिकॉज एज सुन एज यू फ्लिप द स्विच 2 वोल्ट तो डिस्कनेक्ट हो गया, वो हट गया। तो जो भी चार्ज फ्लो होगा वो 3 वोल्ट के थ्रू होगा। नाउ दिस 3 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड टू व्हाट? इट इज कनेक्टेड टू द हायर टर्मिनल is connected to the right plate, correct? कोई भी एक टर्मिनल पकड़ो, मैं हायर टर्मिनल पकड़ रहा हूँ, आई एम लुकिंग एट व्हाट इट इज कनेक्टेड, इट इज कनेक्टेड टू द राइट प्लेट। सो ऑब्जर्व हाउ द चार्ज इज चेंजिंग ऑन द राइट प्लेट। राइट प्लेट पे इनिशियली कितना था 6 कूलम, फाइनली कितना है 9 कूलम। इसका मतलब क्या, वहां पे 3 कूलम डिपॉजिट हुआ, वो किसके थ्रू आया रहेगा? बैटरी के थ्रू। सो बैटरी के थ्रू कितना चार्ज गया? 3 कूलम गया। दैट इज हाउ यू चेक कितना बैटरी के थ्रू जाता है। वेरी सिंपल, कोई भी एक टर्मिनल पकड़ो बैटरी का, सी विच प्लेट इट इज कनेक्टेड टू, और उस प्लेट पे देखो इनिशियल फाइनल चार्ज कितना चेंज हुआ। सो वर्क डन में तो बैटरी कितना हो जाएगा? 3 कूलम इंटू ईएमएफ कितना? 3 वोल्ट। तो 9 जूल्स इज द बैटरी का वर्क डन, ठीक है। एंड यू कैन ऑलवेज, मतलब कैलकुलेशन तो मैं नहीं कर रहा हूँ, बैटरी का वर्क डन आ गया, यू नो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, यू नो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, यू कैन गेट डेल्टा यू। डेल्टा यू इज चेंज फाइनल माइनस इनिशियल, एंड इस इक्वेशन से यू कैन गेट हीट। ठीक है, एक क्वेश्चन तुमको देता हूँ करने को, पहले अच्छे तरह से समझ लो। ना तुमको एक क्वेश्चन देता हूँ, दिस इज 2 वोल्ट 2 फैराड 4 वोल्ट, ठीक है। तो वही क्वेश्चन वही है, फाइंड हीट व्हेन द स्विच इज फ्लिप्ड टू पोजीशन 2। टर्मिनल का पोलैरिटी देखो, पोलैरिटी मतलब किस सेंस में बैटरी को रखा हुआ है वो केयरफुली करना, और ट्राई इट आउट। सो सबसे पहले तो वंस अगेन वील फिगर आउट द चार्ज, वील फिगर आउट द इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो कितना चार्ज आ जाएगा इनिशियली? CV 4 एंड राइट साइड इज कनेक्टेड टू द हायर टर्मिनल, सो 4 कूलम माइनस 4 कूलम, ये मेरा चार्जेस है। और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना है? हाफ CV स्क्वायर, सो हाफ इंटू 2 इंटू 2 स्क्वायर, तो 4 जूल्स, ठीक है। फाइनली नाउ देखो केयरफुली, left plate is now connected to the higher terminal, so CV, तो 8 कूलम माइनस 8 कूलम आ गया। now look at any of the plates, if I look at the higher terminal it is connected to the left plate, तो लेफ्ट प्लेट में पहले -4 था, अभी 8 आया, मतलब यहाँ पे कितना चार्ज आया रहेगा? 12 कूलम्स आया रहेगा, ठीक है। तो वही -4 का 8 होगा ना, तो 12 कूलम्स हैज गॉन फ्रॉम थ्रू द बैटरी, ओके। एंड फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हाफ CV स्क्वायर, सो हाफ इंटू 2 इंटू 4 स्क्वायर विच इज 16 जूल्स, ठीक है। हो गया। एंड वर्क डन बाय बैटरी कितना हो जाएगा? दिस वाज द मेन थिंग, वर्क डन बाय बैटरी के लिए चार्ज कितना फ्लो कर रहा है, बाकी तो सिंपल है। सो 12 इंटू EMF 4, 48 जूल्स, ठीक है। तो कितना इंक्रीज हुआ? डेल्टा यू कितना होगा? 12 जूल्स, ऑलराइट। सो 48 माइनस 12 इज द हीट, सो हीट इज 36 जूल्स, दिस इज योर आंसर। सो वन थिंग, ये हीट अकर क्यों कर रहा है? इट्स बिकॉज ऑफ द जूल हीटिंग I²R, जो अपन बाद में देखेंगे। यहाँ पे रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, बट फिर भी करंट I²R का प्रोडक्ट फाइनाइट आता है। दिस वी विल लुक एट इट इन RC सर्किट्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। देख, लेट्स लुक एट कैपेसिटर्स इन सीरीज। सो फॉर्मूला तो सिंपल है, सीरीज फॉर्मूला, पैरेलल फॉर्मूला, बट आई वांट टू शो यू a little bit of its derivation also, because we should know where it is applicable and where it is not. lot of students apply it and wrongly in certain situations, series formula, तो वो carefully देखते हैं, और उसमें अपन किरचॉफ्स लूप लॉ भी स्टडी कर लेंगे। तो मेरे पास एक बैटरी है, कैपेसिटेंस C1 and C2, okay. Now I want to basically replace the system by C equivalent such that the same charge is going through the बैटरी। यहाँ पे एक स्विच है, इनिशियली न्यूट्रल है, इनिशियली द प्लेट्स आर न्यूट्रल एंड दिस इज द की मतलब ये मेन चीज है, क्योंकि अगर प्लेट्स न्यूट्रल नहीं है तो ये सीरीज फॉर्मूला जो अपन डिराइव करेंगे वो नहीं यूज कर सकते। दैट इज वेयर स्टूडेंट्स मेक अ लॉट ऑफ मिस्टेक।
ऑलराइट, सो इस स्विच को मैंने बंद किया तो जितना चार्ज फ्लो होगा उतना ही चार्ज इस स्विच को बंद करने में फ्लो होना चाहिए. दैट इज द होल थिंग. वी वांट टू रिप्लेस दिस सिस्टम ऑफ टू कैपेसिटर्स बाय अ सिंगल कैपेसिटेंस. सो after the charge has flown, initially like I said they are neutral, plates are neutral. तो यहाँ पे चार्ज Q जाके यहाँ पर डिपॉजिट हो जाएगा, उसका नेगेटिव यहाँ पर इंड्यूस हो जाएगा. करेक्ट, वी नो दिस फ्रॉम पैरेलल प्लेट्स. नेगेटिव इंड्यूस हुआ का मतलब क्या, मैजिकली अपीयर तो होगा नहीं. तो न्यूट्रल प्लेट है मतलब Q यहाँ से निकला होगा तो वो जाके इस प्लेट पे डिपॉजिट होगा और उसका नेगेटिव यहाँ पे माइनस Q. तो इसका मतलब यहाँ पे Q गया, Q निकला होगा और वही Q तो है जो यहाँ से बैटरी के थ्रू घूम के इस प्लेट पे रहा है. ठीक है, दैट इज हाउ the charges will flow. Now that the charges have flown and they are deposited, this is the final state. I can write loop law, which is nothing but saying that in a closed loop the change in potential is zero, which is मतलब उसको लॉ बोलने की भी जरूरत है नहीं. एक पॉइंट से शुरू करो वापस उसी पॉइंट पे आओ तो पोटेंशियल ऑब्वियसली सेम पॉइंट से सेम पॉइंट है तो चेंज इन पोटेंशियल कितना, जीरो, वहीं पे तो आगे. ठीक है, सो इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल चेंज होगा. यू गोइंग फ्रॉम द लोअर टर्मिनल टू द हायर टर्मिनल एंड वी नो द पोटेंशियल डिफरेंस इज E, so the potential change is E. Then you go from the higher charge to the lower charge. Now one thing is, when you want to write the voltage change as you go from one plate of the capacitor to another plate, तो जैसे तुम Q से माइनस Q जा रहे हो, यहाँ पर मुझे जनरल आइडिया है कि Q पॉजिटिव है. बट अगर Q पॉजिटिव नहीं भी होगा इन जनरल, अगर तुमने कभी आगे के कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स में Q को कुछ अज्यूम कर लिया, कुछ वेरिएबल यहाँ पे चार्ज Q अज्यूम कर लिया, यू डू नॉट नो वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, डजंट मैटर. मन में यू अज्यूम इट इज पॉजिटिव एंड राइट द पोटेंशियल चेंज. द इक्वेशंस विल टेक केयर ऑफ द साइन. सो व्हाट आई मीन बाय दैट इज, as I go from positive plate to negative plate, the potential will decrease because we are going from positive charge to negative charge. So electric field lines are from positive to negative. Electric field lines are also from higher potential to lower potential. So we know we are going from higher potential plate to lower potential plate. So potential will decrease. And what is the change in potential? The magnitude. The magnitude is Q by C. But because you are going from Q to minus Q, मन में you have assumed Q as positive. The change, मतलब final minus initial potential, you will write it as minus Q by C. C1 इस केस में. ठीक है. Same thing, you're going from positive to negative, you'll write the change as minus Q by C2. And then you're back again here. अब ये जो पूरा जो वायर है वो इक्विपोटेंशियल है ना, करेक्ट. तो you're back to the original position, तो change in potential is zero. ठीक है, ये आ गया मेरे पास. एंड सेम थिंग अगर मैं यहाँ पर लिखूँ, इसके अक्रॉस EMF E, ये Q minus Q. So you're going from Q to minus Q. Again potential will drop, but this time by Q by C equivalent. If you compare, you will get our formula. 1 by C equivalent is 1 by C1 plus 1 by C2. The formula तो simple है. Why did I show you the entire derivation? One thing is, एक तो loop law लिखना आ गया अपने को, which will be important later on. The other thing is, ये prove किया अपन, ये derive किया under the condition कि the plates were initially neutral. वहीं से सब कुछ शुरू हुआ, वहीं से ये चार्जेस सेम है. अगर ये Q चार्ज सेम नहीं होता, इफ द प्लेट्स वर नॉट न्यूट्रल इनिशियली, तो फिर ये जरूरी नहीं है कि इस प्लेट पे Q चार्ज इस प्लेट पे Q चार्ज सेम होगा, ऑब्वियसली नहीं ना. यहाँ पर राइट वाले ये वाले प्लेट पे जीरो चार्ज था, इसलिए जो Q निकला वहीं वहाँ पे जाके चार्ज बन गया Q. बट अगर न्यूट्रल नहीं होता तो ये सब ब्रेक डाउन होता, मतलब दिस ऑल ऑफ दिस वुड नॉट हैव बीन वैलिड. यू कैन नॉट यूज दिस. ओके, so we'll do such questions later on, but do not use a series formula when the charges are not the same. So basically the plates are not neutral initially, then don't use the series formula. Okay, देख लो. Parallel भी देख लेते हैं. Parallel is quite straightforward. Parallel is basically capacitors that are across the same potential difference. मतलब the left side of both the left plate of both the capacitors are connected to the higher terminal, the right plates are connected to the lower terminal, so they have the same potential difference across them. कितना potential difference है E. तो अगर यहाँ पे चार्ज Q1 गया, यहाँ पे चार्ज Q2 गया, तो यहाँ पे कितना आया रहेगा, Q1 plus Q2 आके वही तो स्प्लिट हुआ रहेगा, करेक्ट. तो I just want to replace this by a single capacitor C equivalent, जिसमें चार्ज Q is going and this Q is equal to this Q1 plus Q2. Q को मैं लिख सकता हूँ C equivalent into E. Q1 को लिख सकता हूँ C1E
and therefore I have C equivalent as C1 plus C2. That is the parallel combination formula. Alright, देख लो. तो देखो किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है. सपोज मेरे पास सपोज लेट्स से स्टार्टिंग में तीन कैपेसिटर्स है, ऐसे वायर्स कनेक्टेड, और पूछा है फाइंड द सी इक्विवेलेंट अक्रॉस ए बी. ठीक है. सो एट फर्स्ट ग्लांस इफ यू हैव नॉट सीन दिस सर्किट यू माइट फाइंड इट अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड, या पता नहीं कैसे करेंगे. बट ऐसे क्वेश्चंस को फर्स्ट थिंग यू शुड ऑलवेज लेबल द जंक्शंस बाय सम पोटेंशियल वैल्यूज. मतलब क्या? बाय सम पोटेंशियल वेरिएबल्स. इसका मतलब क्या? जंक्शन की तरह मोर देन टू वायर्स अ मीटिंग, मतलब ये एक जंक्शन है, ये एक जंक्शन है, करेक्ट, और ये वाले भी है. ओके, सो लेट मी से कि इसका पोटेंशियल कुछ x है, इसका पोटेंशियल कुछ y है. ऑलराइट, ये पोटेंशियल A और ये B. सो कैन यू सी दैट ये जो y है ये भी y हो गया, तो इसका भी पोटेंशियल, पूरे टर्मिनल A का पोटेंशियल y हो गया. और ये जो x है तो इसका मतलब पोटेंशियल B का भी x ही हो गया, करेक्ट. सो देयरफॉर मेरे पास इफेक्टिवली अल्टीमेटली आई हैव ओनली टू इलेक्ट्रिकली यूनिक पॉइंट्स. इलेक्ट्रिकली यूनिक मतलब जिसका पोटेंशियल अलग है. ऐसे दो ही पॉइंट्स है, x एंड y, दो ही अलग पोटेंशियल्स है ना पूरे सर्किट में. सो देयरफॉर जस्ट राइट ऑन x एंड रीड्रॉ योर सर्किट. सो x एंड y, तो ऐसे एक एक कैपेसिटर को देखो. C1 इज अक्रॉस y एंड x, करेक्ट. ये C1 आ जाएगा. C2 इज अक्रॉस x एंड y. C3 इज अक्रॉस x एंड y. तो इसका मतलब these are all in parallel. तो C equivalent will simply be C1 plus C2 plus C3. ठीक है. So this is how you redraw the diagrams. Now we'll look at more complicated circuits. So this is the method. Figure out all the junction का potentials and redraw the diagram. वो देखेंगे और प्रैक्टिस मिलेगा. इसमें ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि सपोज मेरे पास एक बैटरी कनेक्ट कर दिया EMF E का, ठीक है, एंड पूछा है फाइंड द चार्ज ऑन लेट्स से द राइट प्लेट ऑफ C3. तो C3 नहीं, चलो C2 का बोलता हूँ. C2 का जो राइट प्लेट है उसमें कितना चार्ज है. ओके, सो इसमें अपने को थोड़ा केयरफुली करना है. इस सर्किट डायग्राम में बैटरी कैसे कनेक्ट किया. द हायर टर्मिनल इज कनेक्टेड टू X. ओके, सो हायर टर्मिनल इज कनेक्टेड हियर एंड द लोअर टर्मिनल इज कनेक्टेड टू Y. सो दिस इज हाउ माय सर्किट डायग्राम में लुक. पोलैरिटी ऑपोजिट हो गया बिकॉज अपन ने डायग्राम कैसे ड्रॉ किया वो वैसे देखना है. मतलब हायर टर्मिनल इज कनेक्टेड टू X, तो मेरा X लेफ्ट में है इस सर्किट डायग्राम में, ठीक है. ओके, तो C2 का जो राइट प्लेट है, ओरिजिनल डायग्राम में C2 का राइट प्लेट इज कनेक्टेड टू Y. तो यहां पर कौन सा, वो यही है, समझ में. तो इस पे कितना चार्ज आएगा. दिस इज कनेक्टेड टू द लोअर टर्मिनल ऑफ द बैटरी, तो कितना चार्ज आएगा वहां पे, -C2E, करेक्ट. उसके लेफ्ट प्लेट पे आ जाएगा +C2E. इफ दे आस्क यू फाइंड द चार्ज ऑन द राइट प्लेट ऑफ C1, तो C1 का अगर राइट प्लेट पे चार्ज पूछा तो सोचो कितना होगा, फटाफट बताओ. C1 का जो राइट प्लेट दैट इज कनेक्टेड टू X, तो द राइट प्लेट ऑफ C1 इन माय सर्किट डायग्राम इज द लेफ्ट प्लेट हियर. दिस इज द एक्चुअल राइट प्लेट ऑफ C1 दैट इज कनेक्टेड टू X, है ना. तो उसमें पॉजिटिव C1 ही रहेगा, समझ में. देख लो, एक और क्वेश्चन करते हैं. आई हैव अ कंडक्टिंग रिंग या मेटल रिंग. इसका मतलब वो पूरा इक्विपोटेंशियल बन गया. all capacitances are equal to C naught. Find the equivalent capacitance between A and B. ठीक है. Once again junctions को लेबल करो.
एंड ट्राई एंड ड्रॉ द डायग्राम. ट्राई करो. ओके, सो मेरा जंक्शन क्या है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे. वो तो पूरा एक ही कंडक्टर है ना, एक ही पोटेंशियल है, और वो दैट इज द पोटेंशियल ऑफ बी. करेक्ट. तो इसको मैं x बोलता हूँ. सो ए बी एंड x आर 3 यूनिक पोटेंशियल्स इन माय डायग्राम. सो यूजुअली यू प्लेस द टर्मिनल्स अक्रॉस विच यू वांट टू फाइंड द कैपेसिटेंस. उनको सबसे दूर रखो, बाकी के पोटेंशियल्स को बीच में ड्रॉ करो. सो ए और बी के अक्रॉस चाहिए तो उनको सबसे दूर रखो, और बीच में लेट से x है. ठीक है. अब एक एक करके देखो. सो ये पोटेंशियल ए है, ये बी है. जो बी का पोटेंशियल है ये भी बी है, ये भी बी है, ये भी बी है, बिकॉज ये पूरा इक्वी पोटेंशियल है ना. ओके, सो लेट्स से सबसे एक एक कैपेसिटर देखते हैं किसके अक्रॉस कनेक्टेड एंड वील कनेक्ट इट हियर. सो दिस कैपेसिटर इज कनेक्टेड फ्रॉम अक्रॉस एक्स एंड बी. ओके, ये वाला. दिस कैपेसिटर इज आल्सो कनेक्टेड अक्रॉस एक्स एंड बी. दिस इज आल्सो कनेक्टेड अक्रॉस एक्स एंड बी. एंड दिस इज कनेक्टेड अक्रॉस एक्स एंड ए. हो गया, मेरा सर्किट डायग्राम बन गया. अभी वेरी सिंपल. ये 3 सीरीज में, सॉरी ये 3 पैरेलल में है, तो वो इसका कॉम्बिनेशन कितना हो जाएगा, 3C0, एंड दैट 3C0 विल बी इन सीरीज विद C0. सो माय C इक्विवेलेंट विल बी 3C0 into C0 by 3C0 plus C0, so 3C0 by 4. That is how you solve the circuit. Alright, देख लो. Now very important technique in circuit analysis, nodal analysis. तो let me talk about this. एक एग्जाम्पल के थ्रू ही बात करता हूँ. C1, C2, C3, C4 एंड C5 ऐसे 5 कैपेसिटर है. एंड क्वेश्चन में पूछा गया कि ए और बी के अक्रॉस C इक्विवेलेंट कितना होगा. ठीक है. तो दिखने में कॉम्प्लिकेटेड है, यहाँ पे कुछ सीरीज पैरेलल भी है नहीं. तो ऐसे क्वेश्चंस करने का व्हेन यू डू नॉट हैव एनी सीरीज पैरेलल, इस स्टेप 1 इज कनेक्ट योर ओन बैटरी. खुद का बैटरी लेकर आके यहाँ पर कनेक्ट करो ए और बी के अक्रॉस, जिसके अक्रॉस कैपेसिटेंस पूछा गया, अक्रॉस ए बी. ठीक है. देन स्टेप 2, कैलकुलेट द चार्ज दैट गोज थ्रू द बैटरी. दैट इज द मेन कैलकुलेशन. इसका ईएमएफ कुछ ई बोलता हूँ, ये चार्ज को क्यू बोलता हूँ. एंड स्टेप 3 बेसिकली कैपेसिटेंस इज नथिंग बट क्यू बाई ई. दैट इज हाउ वी डिफाइन कैपेसिटेंस फॉर दिस. पूरे सिस्टम में मैंने देखा कि कितना चार्ज गया, कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, वो ईएमएफ है बैटरी का. तो चार्ज बाई ईएमएफ इज योर कैपेसिटेंस. करेक्ट. ओके, दिस विल कम आउट टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ क्यू एंड ई. वो C1, C2, C3, C4, C5 के टर्म्स में आएगा. वो ई जो अपन ने अज्यूम किया वो कट जाएगा. ठीक है. Alright, so how to calculate the charge? This is the main step. Step 2 is the main thing. How to calculate the charge that goes through the battery? तो charge that goes through the battery, अगर मैंने यहाँ पे बैटरी कनेक्ट कर दिया, ये जो चार्ज जाएगा वो कहाँ पे स्प्लिट होगा? That will go and deposit on C1 का लेफ्ट प्लेट एंड C2 का लेफ्ट प्लेट. You have to recognize और realize कि ये सब यहाँ पर वैक्यूम है, मतलब ये कंडक्टिंग नहीं है. तो जो चार्ज C1 के लेफ्ट प्लेट पे जाएगा वो ऐसे जंप करके कहीं और नहीं जा सकता है. जो चार्ज C2 के लेफ्ट प्लेट पे जाएगा वो कहीं और जंप करके नहीं जा सकता. हवा में जंप करके दूसरे प्लेट पे नहीं जाएगा. ठीक है. राइट, दीज प्लेट्स आर नॉट फिजिकली कनेक्टेड टू द अदर प्लेट्स. दैट यू हैव टू रियलाइज. तो अगर इन दोनों पे मुझे चार्ज आ गया तो मेरा काम हो गया. नाउ इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द चार्ज, कैपेसिटेंस पे अगर मुझे चार्ज चाहिए, देन आई विल नीड अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट. So ultimately it boils down to calculating the potential difference across each capacitor. So we look at once again the junctions. क्या क्या junctions है मेरे पास? एक तो B, एक A है, that is okay. ये एक जंक्शन है, उसको मैं X पोटेंशियल X बोलता हूँ, इस जंक्शन का पोटेंशियल को Y बोलता हूँ. ठीक है. Now अगर मुझे चार्ज लिखना है कैपेसिटर पे, so in general अगर ये प्लेट पोटेंशियल V1 पर है, ये प्लेट पोटेंशियल V2 पर है, तो
let's say this charge is q1, this charge is q2. Of course I know they will be negative of each other, I know that, but फिर भी मैं अलग अलग लिख रहा हूँ. I want to write q1 as capacitance into, see now I do not know v1 बड़ा है कि v2 बड़ा है, so I do not know q1 positive है कि q2 positive है, पता नहीं मुझे, but it doesn't matter. The way we will write the charges, ध्यान से सुनना, charge on the left plate q1 is equal to capacitance into खुद का potential जिसपे चार्ज लिखना है लेफ्ट प्लेट पे, उसका पोटेंशियल v1 माइनस दूसरे प्लेट का पोटेंशियल. अगर q2 को लिखना है तुमको पहले कैपेसिटेंस इनटू खुद का पोटेंशियल v2 माइनस दूसरे प्लेट का पोटेंशियल v1. ऑब्वियसली यू कैन सी देयर विल बी नेगेटिव ऑफ ईच अदर, वो तो पहले से पता है अपने को, बट दिस इज द वे टू राइट. ओके, सो साइन में गड़बड़ कभी नहीं होगा इफ यू फॉलो दिस. चार्ज ऑन अ प्लेट इज कैपेसिटेंस इनटू वो खुद के प्लेट का पोटेंशियल माइनस दूसरे का पोटेंशियल. अब अपने को फर्क नहीं पड़ता है वो कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है, साइन ऑटोमेटिक आ जाएगा. ठीक है, ऑलराइट. सो देयरफॉर I want to calculate the charges. So सबसे first thing that we do here when we want to calculate the charges is we assign the potentials here at the junctions. X is the potential there, Y is the potential there. And it is also useful to set zero potential somewhere just for mathematical convenience. Electrostatics में infinity पे zero potential set करते हैं, यहाँ पे वो यूजफुल नहीं है. यहाँ पे इन्फिनिटी पे क्या है फर्क नहीं पड़ता अपने को, तो सर्किट में कहीं जीरो पोटेंशियल सेट करिए तो मैथमेटिकली यूजफुल हो जाएगा. सो बैटरी, यूजुअली बैटरी का जो लोअर टर्मिनल है उसको जीरो पोटेंशियल अपन सेट कर लेते हैं, जस्ट इट मेक्स कैलकुलेशंस इजी. सो ऑटोमेटिक, बिकॉज दिस एंटायर वायर इज एट जीरो पोटेंशियल, दिस वायर विल देन बिकम एट पोटेंशियल ई बिकॉज डिफरेंस इज EMF E. तो देयरफॉर ये भी E. सो ये C1 का लेफ्ट प्लेट एंड C2 का लेफ्ट प्लेट आर एट पोटेंशियल E. C3 का राइट प्लेट एंड C4 का राइट प्लेट आर एट पोटेंशियल 0. ओके, ऑलराइट. नाउ आई हैव टू सॉल्व फॉर x and y. If I can get x, that means I know the potential of both these plates. Then I can write the charge on the left plate of C1, जैसे यहाँ पर. That is ultimately my aim. तो मुझे x and y के लिए सॉल्व करना है, मतलब दो इक्वेशन चाहिए. ओके, so now the equation is कि if I want to write an equation for x, you look at the plates that x is connected to. X is connected to right plate of C1. It is connected to the left plate of C3 and it is connected to the top plate of C5. Let me draw that here. Correct, ये मेरा X है और ये मेरे बाकी के कैपेसिटर्स है C1, C3, C5. यहाँ पर पोटेंशियल कितना है, ये E. यहाँ पर पोटेंशियल कितना है 0 और C5 के नीचे पोटेंशियल कितना है Y. ओके, नाउ ये जो तीन प्लेट्स है that I'm encircling, ये सर्कल के अंदर जो तीन प्लेट्स है, they are physically disconnected from the rest of the circuit. Like I said, हवा के थ्रू कोई इलेक्ट्रॉन जंप नहीं कर पाएगा. And therefore, these three plates का टोटल चार्ज जो इनिशियली था बिफोर कनेक्टिंग द बैटरी, वही बाद में भी रहेगा. टोटल चार्ज on these three plates, they'll distribute amongst themselves, but total charge cannot change. They are not connected to anything else. So ऐसे क्वेश्चंस में if nothing has been said, we assume that the plates are initially neutral. So total charge इन तीनों पे 0 है and that is the equation that I'm going to write. तो पहले तो बताओ C1 के राइट प्लेट पे कितना चार्ज होगा, राइट प्लेट C1 के, तो खुद का पोटेंशियल कितना है x, दूसरे का प्लेट का पोटेंशियल कितना है E. तो C1 इंटू दिस इज द चार्ज ऑन द राइट प्लेट ऑफ C1. सिंपल. C3 के लेफ्ट प्लेट पे कितना चार्ज है सोचो, C3 इंटू खुद का पोटेंशियल x, दूसरे का पोटेंशियल 0, प्लस C5 का अपर प्लेट का कितना चार्ज है, खुद का पोटेंशियल x माइनस दूसरे प्लेट का पोटेंशियल y. टोटल चार्ज शुड बी 0 बिकॉज इनिशियली वी अज्यूम कि ऑल द प्लेट्स वर न्यूट्रल एंड दिस इज वन इक्वेशन. And now you can imagine दूसरा इक्वेशन क्या लिखूंगा, look at the junction y, look at the plates there that the junction y is connected to and write the same equation. So I suggest कि you pause the video and try to write the same equation for the three plates connected to y. Try करो. So for the three plates connected to y, अब मैं यहीं पे डायरेक्ट बता रहा हूँ. Now you'll be able to understand. ये एक प्लेट है, ये एक प्लेट है और ये एक प्लेट है. ये सर्कल के अंदर जो तीन प्लेट्स है, तो C2 का राइट प्लेट है उसका कितना चार्ज होगा, C2 खुद का पोटेंशियल Y, दूसरे प्लेट का पोटेंशियल E. C4 का खुद का लेफ्ट प्लेट खुद का पोटेंशियल Y, दूसरे का पोटेंशियल 0.
C5 का लोअर प्लेट, खुद का पोटेंशियल y, दूसरे का पोटेंशियल x. Should be once again 0. And these are the two equations that you have, and simultaneous linear equations x और y में. Alright, question में usually some sort of symmetry रहता है. We'll look at those kind of questions. But this is the foundation of circuit solving. Any circuit can be solved using this. देख लो, अच्छी तरह से समझ लो, important. Okay, तो अपना अभी खत्म नहीं हुआ, अपन ने x और y निकाला. मुझे क्या फाइनल क्या चाहिए, C इक्विवेलेंट चाहिए ना. तो मैंने क्या किया था, x और y तुमको निकलेगा इन टर्म्स ऑफ द EMF E, जो अपन ने अज्यूम किया. ठीक है. नाउ दैट यू कैलकुलेटेड x एंड y, ये EMF E. नाउ द चार्ज दैट गोज थ्रू, यहाँ पे लेट्स से Q1 है और यहाँ पे लेट्स से Q2 है. Q1 प्लस Q2 होगा, करेक्ट. सो व्हाट इज द Q1? Q1 इज द चार्ज ऑन C1 लेफ्ट प्लेट. लेफ्ट प्लेट पे अभी कितना है, C1 इंटू खुद का पोटेंशियल माइनस दूसरे का, और ये C2 खुद का कितना पोटेंशियल है, EMF लेफ्ट प्लेट का माइनस दूसरे का y. दिस इज योर चार्ज एंड फाइनली C इक्विवेलेंट वुड बी Q by E. So that is how you get C equivalent. ठीक है. And once you get x and y, you can get the charge on any plate of any capacitor, जो भी क्वेश्चन में पूछा गया. देख लो. तो एक क्वेश्चन देखते हैं. तो ये मेरा सर्किट है एंड आई वांट टू फाइंड द C इक्विवेलेंट बिटवीन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अक्रॉस A एंड B. ठीक है. सब कैपेसिटेंस दिया है, C to C, C to C, C. So you can do what we did. However, there is a certain symmetry that we can exploit here. जो symmetry है, first of all, this is not Wheatstone bridge, जिसके बारे में अपन बात करेंगे. But if you already know about Wheatstone, this is not Wheatstone bridge. यहाँ पे रेशियो 1:2 और 2:1 है. ठीक है. Wheatstone के बारे में बाद में बात करेंगे. यहाँ पे there is what we call as input-output symmetry. Input-output symmetry is कि अगर तुमने लेफ्ट से, मतलब इनपुट साइड से देखा, किसी को भी इनपुट साइड बोल दो, इनपुट साइड से, लेफ्ट साइड से सर्किट देखा और राइट साइड से सर्किट देखा, एंड इफ यू थिंक कि सर्किट लुक्स द सेम, दैट इज व्हाट वी कॉल एज इनपुट-आउटपुट सिमेट्री. इट लुक्स द सेम. लेफ्ट से देखा C to C to C C, राइट से देखा C to C to C C. ऊपर नीचे से फर्क थोड़ी पड़ता है, ग्रेविटी का थोड़ी कुछ इफेक्ट है, ऐसा वर्टिकल प्लेन ऐसा तो कुछ भी है नहीं अपने सर्किट्स में. तो C to C, राइट से देखा लेफ्ट से देखा, इट लुक्स ऑल द सेम, करेक्ट. दैट मीन्स दैट वी कैन एक्सप्लॉइट दिस सिमेट्री मैथमेटिकली. व्हाट दैट मीन्स इज कि सपोज कुछ चार्ज यहाँ पर जाके कुछ चार्ज यहाँ पर गया, Q1, यहाँ पे माइनस Q1. ठीक है. तो वही चार्ज यहाँ पर भी आएगा. व्हेन यू कनेक्ट अ बैटरी, वही चार्ज यहाँ पर भी आएगा. तो यहाँ पर Q2 आ रहा है और माइनस Q2 आ रहा है, वही चार्ज यहाँ पर भी, बिकॉज दे आर सिमेट्रिकल. लेफ्ट से देखा राइट से देखा सिमेट्रिकल. ये C ऐसे, ये 2C सिमेट्रिकल. ठीक है. इसका जो फॉर्मल प्रूफ है कि ये कैसा होगा वो मैं अभी नहीं बता रहा. सो बट यू शुड बी एबल टू सी कि इनपुट आउटपुट सिमेट्री से ये और ये सेम है, लेफ्ट राइट देखा, ये और ये सेम है, लेफ्ट राइट से देखा, तो इन दोनों पे चार्जेस सेम आएगा, इन दोनों पे चार्जेस सेम आएगा. ठीक है. इसके बारे में ऐसा कुछ बोल नहीं सकते, दिस इज अलग से वो अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा. व्हाट दिस इम्प्लाइज इज, सी मुझे C इक्विवेलेंट निकालना है. सो फर्स्ट थिंग दैट वी विल डू इज वी विल कनेक्ट अ बैटरी. करेक्ट. देन जीरो पोटेंशियल लोअर टर्मिनल पे, ये 0, ये E, यहाँ पे X. अब यहाँ पे जो EMF है, पोटेंशियल है, उसको मैं Y बोलता हूँ. बट विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग वी कैन फिगर आउट what Y is by using input output symmetry. Because if I look at C1, ये मतलब ऊपर वाला कैपेसिटेंस C, उसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, E माइनस एक्स. और वही पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस भी होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों सेम चार्ज है ना, सेम कैपेसिटेंस सेम चार्ज, तो सेम पोटेंशियल डिफरेंस. सो E माइनस एक्स शुड बी इक्वल टू Y माइनस 0. तो Y का वैल्यू डायरेक्ट अपन E माइनस एक्स लिख रहे हैं यहाँ पर.
All right. So now you only have to write one equation for the conservation of charge. Okay. So now I will like you to solve it. Connect or consider any junction either ऊपर या नीचे, and ये 3 plates है, नीचे वाले 3 plates जैसे अपन ने पिछले बार लिखा था वैसे लिखो, but this time y का value you already know in terms of x, so you don't have to write the second junction equation. So just write down and solve for x, and write down the sum of all these 3 plates का charges as 0. Solve for x. Once you solve for x, then we'll take a look at my solution. ठीक है. And you can also proceed and calculate C equivalent जैसा पहले किया था. Okay, try करो. Alright, तो let's quickly solve for x. ये C, ये 2C, ये C. So ये वाले प्लेट पे कितना चार्ज आएगा? खुद का पोटेंशियल, कैपेसिटेंस इनटू खुद का पोटेंशियल है x माइनस E. इस वाले प्लेट पे कैपेसिटेंस 2C, खुद का पोटेंशियल है x माइनस 0. ये कैपेसिटेंस का खुद ऊपर वाले प्लेट का खुद का पोटेंशियल है x माइनस नीचे E माइनस x. शुड बी 0. तो देखो कितना आ जाएगा, यहाँ पे x, यहाँ पे 2x और यहाँ पे 2x, 5x इज इक्वल टू E. सो x का वैल्यू 2E by 5 हो गया, एंड देयरफॉर y का वैल्यू 3E by 5 हो गया, है ना. तो आई होप यू आर आल्सो एबल टू गेट इट. सिंपल इक्वेशन है. नाउ दैट वी नो x एंड y, कैन वी गेट C इक्विवेलेंट? तो ये इसका वैल्यू 2E by 5, इसका वैल्यू 3E by 5, यहाँ पर E, यहाँ पर E, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0. ठीक है. तो मुझे क्या चाहिए, कितना चार्ज गया बैटरी के थ्रू, है ना. तो मुझे ये ऊपर वाले प्लेट पे मेरे को चार्ज चाहिए, और इस वाले दोनों को ऐड करके बैटरी का चार्ज निकल जाएगा. तो इस पे कितना आ जाएगा चार्ज? कैपेसिटेंस इनटू पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 3/5, प्लस नीचे वाले का कैपेसिटेंस कितना 2C इनटू इस प्लेट पे चाहिए, तो उसका खुद का पोटेंशियल E माइनस दूसरे प्लेट का पोटेंशियल 3/5. तो 2E/5 इज द पोटेंशियल डिफरेंस. दिस इज द चार्ज दैट हैज गॉन थ्रू द बैटरी. तो कितना हो जाएगा? 4 + 3 7, and therefore Q by E is your C equivalent, which is 7C/5. And that is how you will calculate the C equivalent. देख लो, if you understand this example, then you've completely mastered nodal analysis. Okay, देख लो. Now let's come to Wheatstone bridge. So Wheatstone bridge is once again 5 capacitors. C1, C2, C3, C4, C5. So Wheatstone bridge में if you write the nodal analysis जो अपन ने किया, what happens is if C1 by C2 is equal to C3 by C4, तो ये जो x और जो y अपन ने निकाला था, it turns out कि x is equal to y. So इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो सेम है, तो मतलब x equal to y. इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C5 is 0. So therefore there is no charge on C5. So what you can do is you can remove C5. ठीक है, you can remove C5 and your circuit will look like this: C1, C3, C4, C5, C2, C4. दोनों series parallel. Or you can also, because x and y are at the same potential difference, same potential rather, so you can just join them. ये भी कर सकते हो. C1, C2, C3, C4. Both circuits are equivalent for a Wheatstone bridge. दोनों से तुमको सेम ही C equivalent आएगा. ठीक है, you can do that on your own. This has the advantage कि कैपेसिटेंस में पैरेलल फॉर्मूला इजियर है ना, डायरेक्ट एडिशन है. सीरीज में रेसिप्रोकल करना पड़ता है. तो यहाँ पे 2 बार सीरीज लगाना पड़ेगा, 1 बार पैरेलल, यहाँ पे 2 बार पैरेलल और 1 बार सीरीज. तो ये वाला डायग्राम is a little quicker मैथमेटिकली. बाकी दोनों से ऑब्वियसली आंसर सेम ही आएगा. ठीक है, देख लो. So let's look at an example कि कैसा आता है. Let's say 2 farad. Yeah, चलो 2 C0, C0, 6 C0, 3 C0.
सपोज ऐसा है, सी नॉट इज जस्ट अ कांस्टेंट, तो ए और बी के अक्रॉस सी इक्वलेंट निकालना है. सो वंस अगेन वील हैव टू रीड्रॉ द सर्किट डायग्राम अ लिटिल बिट, थोड़ा बेटर फॉर्म में. तो जंक्शंस देखते हैं. इट इज नॉट ऑब्वियस इफ दिस व्हीटस्टोन और सीरीज पैरेलल, कुछ तो है नहीं. सो लेट्स से कि दिस जंक्शन इज एक्स पोटेंशियल, दिस जंक्शन इज वाई, ओके, एंड ये ए और बी. सो मेरे पास ए बी सबसे दूर रखूंगा. नाउ इट विल बी यूजफुल इफ वी सेट एक्स एंड वाई दिस वे, सो दैट 5 कैपेसिटर है ना, तो 5 कैपेसिटर जब यूजुअली रहता है तो दिस फॉर्म इज ईजियर. दो जंक्शन को ऐसे वर्टिकल फॉर्म में रखो तो वो डायग्रामेटिकली ईजियर हो जाता है. 5 कैपेसिटर है तो मेरे पास सी नॉट किसके बीच में है, ए और वाई के बीच में. तो ए और वाई के बीच में सी नॉट, ए और एक्स के बीच में क्या है, 2 सी नॉट इज अक्रॉस ए एंड एक्स. मैंने ऐसे अक्रॉस ए एंड एक्स मतलब वन प्लेट इज कनेक्टेड टू ए, द अदर प्लेट इज कनेक्टेड टू एक्स, ऐसे. फिर x और b के क्रॉस क्या कनेक्टेड है, x और b के क्रॉस 6 सी नॉट कनेक्टेड है, एंड y एंड b के क्रॉस 3 सी नॉट कनेक्टेड है, एंड x और y के क्रॉस 2 सी नॉट कनेक्टेड है. नाउ यू शुड बी एबल टू सी Wheatstone 2:1 ratio, 2:1 ratio. This is Wheatstone. You can remove this or you can connect these. ठीक है, तो अब तो सिंपल हो गया. Let me draw it this way. ये मेरा A, ये मेरा B. क्या कर दिया मैंने, X और Y को कनेक्ट कर दिया बिकॉज दे आर एट द सेम पोटेंशियल. ठीक है, तो दिस इज 2 C नॉट, दिस इज C नॉट, दिस इज 6 C नॉट, दिस इज 3 C नॉट. तो इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन 3 C नॉट, इन दोनों का 9, एंड 3 और 9 का कितना हो जाएगा, C इक्वलेंट सीरीज में 1/3 प्लस 1/9 मतलब 9/4. सो चेक करो सही लिख रहा हूँ, यस. ओके, इन दोनों का पैरेलल एंड देन सीरीज कॉम्बिनेशन देख लो. नाउ लेट्स लुक एट द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्कनेक्टिंग, वेयर वी कैन कनेक्ट, वेयर वी कैन डिस्कनेक्ट रादर. तो एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ. ठीक है, ऑल कैपेसिटेंस आर इक्वल और मुझे ए और बी के अक्रॉस सी इक्वलेंट निकालना है. ठीक है, ऑल कैपेसिटेंस आर इक्वल टू सी नॉट, लेट्स से. तो मुझे ए और बी के अक्रॉस निकालना. नाउ यू कैन सी वंस अगेन यू हैव इनपुट आउटपुट सिमेट्री. इनपुट आउटपुट सिमेट्री इज यूजुअली द मोस्ट कॉमन सिमेट्री. तो फर्स्ट थिंग यू शुड थिंक ऑफ कि इनपुट आउटपुट सिमेट्री है कि नहीं. लेफ्ट से देखो, राइट से देखो, सेम सर्किट. दैट मीन्स कैन यू सी कि सिमेट्रिकल कैपेसिटेंसेस पे सेम चार्ज होगा. तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर देखो और यहाँ पर देखो, इन दोनों पे सेम चार्ज होगा, करेक्ट. इन दोनों पे भी सेम होगा और इन दोनों पे भी सेम होगा. सो दैट मीन्स कि अगर इन दोनों पे चार्ज सेम है, वो कैसे क्रिएट हो सकता है. इनिशियली सब न्यूट्रल है, इसका मतलब अगर यहाँ पे चार्ज Q है तो यहाँ पे -Q इंड्यूस होगा तो Q निकलेगा. और अगर इस पे Q चार्ज है, बिकॉज वी नो बाय सिमेट्री दोनों पे चार्ज सेम रहेगा, इसका मतलब यही प्लेट से डायरेक्ट यहाँ पर गया, ये प्लेट से डायरेक्ट यहाँ पर गया चार्ज. सो देयरफॉर आई कैन डिस्कनेक्ट, ऊपर चार्ज गया ही नहीं है. ठीक है, दैट्स हाउ वी यूज इनपुट आउटपुट सिमेट्री. वंस अगेन टू क्विकली रिपीट, आई नो बाय इनपुट आउटपुट सिमेट्री दोनों पे चार्ज सेम है. अगर दोनों इनिशियली न्यूट्रल है, विच वी अज्यूम, दैट मीन्स वो सीरीज वाला कॉन्सेप्ट बन गया ना. इसका मतलब चार्ज मस्ट हैव फ्लोन डायरेक्टली फ्रॉम दिस प्लेट टू दिस प्लेट. तो मतलब ऊपर यू कैन जस्ट डिस्कनेक्ट. अब सिंपल है, दिस इज इन सीरीज, तो सी नॉट क्या बन जाएगा, C0/2, एंड दैट विल बी इन पैरेलल विद दिस, तो 3 C0/2. ये दोनों सीरीज C0/2. ठीक है, C0, C0/2, 3 C0/2, ये दोनों C0/2. अब तो आगे कर लोगे तुम, मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ. दिस एंटायर थिंग इज सीरीज एंड देन दिस इज इन पैरेलल. ओके, देख लो. नाउ लेट्स लुक एट अनदर क्वेश्चन. Let's say C, 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 2C, 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 and C and C.
तो ऐसा मेरा कैपेसिटेंस सर्किट है, ठीक है। नाउ यहाँ पर इनपुट आउटपुट सिमेट्री तो नहीं है, लेफ्ट से देखा राइट से देखा तो इनपुट आउटपुट सिमेट्री तो नहीं है। सो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन रिजॉर्ट टू फोल्डिंग। लेफ्ट से राइट से इनपुट आउटपुट सिमेट्री क्यों नहीं है? बिकॉज सी 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 यहाँ से टू सी टू सी टू सी, ठीक है। तो वी कैन रिजॉर्ट टू फोल्डिंग। अब फोल्डिंग का मतलब क्या? वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। वंस अगेन लुक एट द जंक्शंस। क्या क्या जंक्शंस है? एक ऊपर एक यहाँ पर एक। अगर इसका पोटेंशियल एक्स बोलो, कैन यू सी कि इसका भी पोटेंशियल एक्स हो जाएगा डायरेक्टली, बिकॉज ऊपर से जो सर्किट दिख रहा है और नीचे से जो सर्किट दिख रहा है वो सिमेट्रिकल है ना, इसके ऊपर और इसके नीचे सिमेट्रिकल है ना, करेक्ट। सो देयरफॉर लेट्स से दिस इज वाई। So because these two are at the same potential, I can fold this lower half so that I connect these 2 points together. If 2 points in a circuit are at the same potential, you can just join them. So इसको ऐसे चपाती की तरह फोल्ड करके कनेक्ट कर दो यार एक्स एक्स। What that means is सर्किट वाइज, फिजिक्स वाइज क्या कर रहे हैं अपन कि ये ए और एक्स के बीच में जो कैपेसिटेंस है और ये ए और एक्स के बीच में जो कैपेसिटेंस है वो दोनों पैरेलल में हो गए, because they are across the same potential difference, A and X, correct? So effectively folding is just a way to visualize what we are doing, but physically you should understand that we are basically just keeping one X point. I have drawn A, Y, B and X. ये X नीचे ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है बिकॉज ये दोनों सेम पोटेंशियल है। However, now ए और एक्स के अक्रॉस कितना कैपेसिटेंस, ये सी भी है ये सी भी है, मतलब उसका पैरेलल इक्विवेलेंट दोनों पैरेलल में हो जाएंगे। सो पैरेलल इक्विवेलेंट 2C। सिमिलरली एक्स और बी के अक्रॉस 2C, एक्स और बी के अक्रॉस 2C, तो वो 4C। और ये सी और ये 2C वैसे का वैसे रहेगा। एंड व्हाट अबाउट एक्स और वाई के बीच में C, ये भी एक्स और वाई के बीच में C, तो उनका पैरेलल इक्विवेलेंट 2C। नाउ वी अगेन गेट अ व्हीटस्टोन ब्रिज। So now it's a Wheatstone bridge. You can see 2:1 ratio, 2:1 ratio, and then you can solve the Wheatstone circuit. तो easy है solve करना. Okay? देख लो. Now let's come to 3-dimensional circuits. Cuboid की बात करते हैं. तो हर साइड के अक्रॉस एक कैपेसिटेंस है और इक्वल कैपेसिटेंस मान रहे हैं, ठीक है। मैंने ऐसे ड्रॉ किया बट ऑब्वियसली दो प्लेट्स के बीच में वायर नहीं है, ओके, जस्ट फॉर सेविंग टाइम मैंने ऐसे ड्रॉ किया, बट ऑफ कोर्स यू अंडरस्टैंड दैट द वायर इज नॉट कनेक्टिंग द टू प्लेट्स, बिटवीन द टू प्लेट्स देयर इज नो वायर, ओके। फर्स्ट थिंग लेट्स से सो मुझे निकालना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अक्रॉस ए एंड बी, तो सारे कैपेसिटेंसेस सी दिए हुए। सो ऐसे क्वेश्चंस में वंस अगेन वी कैन रिजॉर्ट टू सिमेट्री। So let's say कि you connect a battery here, okay, and let's say कि कुछ चार्ज Q जा रहा है, alright, तो can you see कि it was split equally? ये तीनों just imagine कि ये origin है, ये x y z है, तो origin के respect में x y z तो पूरा symmetrical ही है, correct? So suppose I connect a battery here, इसको zero potential बोलता हूँ, तो ये EMF E बन जाएगा, मतलब ये zero, ये E. And let's say that this junction is X, so this junction will also be X and this junction will also be X because all 3 points are equivalent. All 3 points are symmetrically identical. Similarly, B से अगर देखोगे तो these 3 lines connecting B are once again equivalent, identical. So इसका जो potential Y रहेगा, इसका जो potential Y रहेगा, इसका जो potential Y रहेगा, वो सब same रहेगा. So effectively, I only have 4 unique electrical points: 0, E, X and Y. So let me write. लाइक ऐसे जिन दो पॉइंट्स के अक्रॉस कैपेसिटेंस निकालना है उन दोनों को सबसे दूर रखो, ई एंड जीरो, बाकी दो को बीच में लिखो, ठीक है। अच्छा, ना ई और एक्स के बीच में कितने कैपेसिटेंस है? 1, 2 एंड 3। फिर एक्स और वाई के बीच में कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 कैपेसिटर्स है। सो दो 3 कैपेसिटर्स ई और एक्स के बीच में है, दे आर इन पैरेलल ऑब्वियसली, सो 3C बन जाएगा। सिमिलरली एक्स और वाई के बीच में 6 कैपेसिटर है, तो वो 6C बन जाएगा। एंड वाई और जीरो के बीच में वंस अगेन 3 कैपेसिटर है,
तो फिर से 3c. नाउ इट्स वेरी सिंपल, इन तीनों को सीरीज में ऐड करना, 1/3c प्लस 1/6c प्लस 1/3c विल बी 1/c इक्विवेलेंट. कैलकुलेशन तो कर लोगे. So I hope you've understood how to simplify such complicated looking circuits. Okay. Now we'll take a look at another situation जहाँ पर the terminals are connected across a face diagonal. पहले ये देख लो. Okay, तो मेरे पास एक क्यूब है and once again सब जगह कैपेसिटर है. All capacitances are equal. And this time I have connected the terminals जिसके across मुझे equivalent capacitance चाहिए across the face diagonal. Alright. So if you want, give it a try. Try getting the equivalent capacitance. Try converting this into a 2D diagram and then take a look at my solution. Okay. तो first of all, can you see कि अब ये तीनों जो एक A से निकल रहे हैं वो सिमेट्रिकल नहीं रहेगा, करेक्ट? Let me first convert this into a 2D diagram just by collapsing the upper surface into the lower surface. इसका मतलब क्या है? कुछ नहीं है. सी 3D मतलब अभी वर्टिकल हॉरिजॉन्टल से तो कुछ फर्क पड़ता है नहीं सर्किट्स को. तो कैन आई ड्रॉ इट दिस वे? अगर मैं ऊपर से देखूं और इसको ऊपर वाले सरफेस को ऊपर वाले स्क्वायर को थोड़ा सा छोटा करके चपटा कर दूं, देखो, दिस इज द अपर स्क्वायर, दिस इज द लोअर बेस स्क्वायर, एंड ये जो लाइंस है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, दिस आर द वर्टिकल, द 4 वर्टिकल लाइंस जिनको मैंने ऐसा फ्लैट कर दिया. ठीक है. नाउ सिमेट्री दिख रहा है, ऊपर नीचे सिमेट्री है. तो वी कैन डू दिस वेरियस वेज. वन वे इज टू रियलाइज दैट देयर इज इनपुट आउटपुट सिमेट्री. तो जैसे कि अगर मैं यहाँ पे देखो, जो इस कैपेसिटर पे चार्ज है वही इस कैपेसिटर पे चार्ज होगा, करेक्ट, बाय इनपुट आउटपुट सिमेट्री. सो यहाँ पे जो चार्ज जाएगा वो डायरेक्ट इस कैपेसिटर पे जाएगा, तो ये हटा सकता हूँ मैं. सिमिलरली ये हटा सकता हूँ मैं. ठीक है. अनदर वे वाज टू फोल्ड द ऊपर नीचे पोटेंशियल सेम रहेंगे सिमेट्रिकली. सो नीचे वाले को ऊपर तक फोल्ड कर दो, देन यू विल बी एबल टू सी अ व्हीटस्टोन ब्रिज. ओके, दैट इज अनदर वे, यू कैन ट्राई इट आउट दैट वे. नाउ इट्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. ये C that will become C/2 सीरीज में, दिस C सीरीज में C/2, C/2 पैरेलल में C. ठीक है. एंड इसका पूरा कॉम्बिनेशन कितना हो गया? C. ये C, ये C, ये C सीरीज में, मतलब C/3 ऊपर C/2, तो C/2 ऊपर, नीचे भी C/2, इन दोनों का सीरीज. और ये पूरा मिडल वाला ब्रांच कितना हो गया? C/3. ठीक है. अभी ऐड कर दो पैरेलल में. ऑलराइट, देख लो. And lastly, cube में if we connect adjacent corners, or rather we set the terminals to adjacent corners. Okay, this is a little this is probably the tougher case of the 3 situations that we've seen. थोड़ा सा visualize करना है. So इसमें once again symmetry तो है, सारे again सारे wires के cross capacitor है, all capacitors are C. I want to find the equivalent capacitance across A and B. ठीक है. तो कैन यू सी कि ये जो जाएगा सिमेट्री कहाँ पर है? अगर मैं इसको थोड़ा सा रोटेट करके बनाऊं तो सिमेट्री दिख जाएगा तुमको. कुछ नहीं, स्क्वायर इस क्यूब को थोड़ा सा रोटेट किया मैंने. तो कैन यू सी कि ऐसा सिमेट्री है, मतलब ए से जो चार्ज जाएगा, जो यहाँ पर जाएगा वही यहाँ पर जाएगा, मतलब जो चार्ज इस कैपेसिटर पे जाएगा वही इस कैपेसिटर पे जाएगा. सोचो, करेक्ट. सिमिलरली जो इस कैपेसिटर पे चार्ज होगा वही इस कैपेसिटर पे चार्ज होगा. सो बेसिकली अगर यहाँ पे पोटेंशियल x है तो यहाँ पर भी x, और यहाँ पर अगर y है तो यहाँ पर भी y. ओके, let's say this is Z and this is W. तो can you see that ये दोनों x को मैं ज्वाइन कर सकता हूँ, है कि नहीं? इफेक्टिवली अपन क्या कर रहे हैं, अपन इसको ऐसा चपटा कर रहे हैं. वी आर कनेक्टिंग द x, वी आर कनेक्टिंग द y. कैन यू इमेजिन व्हाट वी विल गेट? ये Z, ये W, यहाँ पे x, यहाँ पे y, और यहाँ पे A एंड B. जस्ट इमेजिन करो कि
ये जो एक्स जेड डब्ल्यू वाई है और पीछे वाला जो फेस है वो एक फ्लैट बन गया इसमें, और ये जो फेस है एंड ये वाला फेस वो भी जोड़ दिया हमने, एक्स को एक्स से जोड़ दिया, वाई को वाई से जोड़ दिया, तो ये वाला बन गया। ठीक है, ऑलराइट। अगर विजुअलाइज नहीं भी कर पा रहे हो तो भी फर्क नहीं पड़ता, बेसिकली अपने को तो पैरेलल फार्मूला यूज करना है व्हेन यू कनेक्ट टू पॉइंट्स। तो जैसे कि ए और बी के अक्रॉस एक कैपेसिटर सी है ना, ये ए और एक्स के अक्रॉस कितने कैपेसिटेंस है, ये वाला और ये वाला, करेक्ट। तो पैरेलल में कितना हो जाएगा 2c। बी और वाई के अक्रॉस कितना है सी एंड सी, तो ये भी 2c, करेक्ट। अब ये x और y और ये x और y अगेन पैरेलल 2c, x एंड z, w एंड y एंड एक बचेगा z एंड w के अक्रॉस c। ओके, नाउ स्ट्रेट फॉरवर्ड 2c c 2c का सीरीज करना है, तो 1/2c प्लस 1/2c प्लस 1/c, तो 2/c, तो ये बन जाएगा ऊपर पूरा c/2। This will be in parallel with 2c. करेक्ट, ऊपर वाले को सीरीज किया 1/2c प्लस 1/2c इज 1/c प्लस 1/c 2/c, रेसिप्रोकल c/2 पैरेलल विथ 2c। अब c/2 एंड पैरेलल विथ 2c मतलब कितना 5c/2, एंड देन अगेन इन तीनों का सीरीज के साथ फिर से दैट कॉम्बिनेशन विल बी इन पैरेलल विथ c, तो वो तो खुद कर सकते हो। ऑलराइट, सो दीस आर द 3 क्यूब वाले केसेस। आई वुड सजेस्ट जस्ट ट्राई एंड रिमेंबर द मेथड्स, एक बार ये देख लो और फिर से खुद से भी प्रैक्टिस कर लेना ये सारे तीनों जो केसेस बताए। तो क्यूब में यही 3 केसेस पॉसिबल है, तो जस्ट प्रैक्टिस इट एंड देन फिर वो मेथड काइंड ऑफ याद रख लेना, देख लो।